Okay, so this is Yoga versus Upanishad. Sorry, Yoga versus. This is in second chapter, Srimad Bhagavad Gita and Yoga versus. Okay, these are the syllabus. We all know. The main concept is Adi Vyadi. Main concept is Adi Vyadi, four Dwarkas, and another one is Gyan Bhumika, seven Gyan Bhumi. Okay, these are the main topics or points according to exam purpose. From these points, topics, mainly questions can become from this part. This is the introduction written by Adi Kavi. Not confused between Adi Kavi Valmiki or Yog Vasisht. Okay, is written by Adi Kavi Valmiki in 2020. I think 21. Uh, After COVID exam held net exam, so there was a question. Yog Vasisht is written by whom? Okay, so I was little bit confused at that Adi Kavi Valmiki or Yog Vasisht. Okay, so this is written by Adi Kavi Valmiki. Okay, this is interaction between Guru Yog Vasisht and Sri Ram. Okay, next is the other names of Yog Vasisht. This is the Maharamayana, Vasisht Ramayana, Yog Vasisht Ramayana, Yog Vasisht Maharamayana, Jnana Vasisht, Vasisht Gita, Arsh Ramayana. Why we call Yog Vasisht as Arsh Ramayana? It means it is written by Rishi. That's why it's called as the Arsh Ramayana. And why it is also called Maharamayana? Because it is more largest, larger than Ramayana. Okay, it contains more than 4,000 verses than Ramayana. That's why it's called as Maharamayana. Okay, important point. Yes, ma'am. It has six prakaran, total verses 32,000, sarg 674, 674. Got it? After that, Yes, sir. after Mahabharata, Skanda Puran, Padma Puran, this is the fourth largest Hindu dharma text. After Mahabharata, Skanda Puran and Padma Puran. These are the largest Hindu dharma text. After there, it came Ramayana and Maharamayana, also known as Yoga Vasisth. Basic concept of this text is Advaita Vedanta. So in exam, four options will came in front of you, and they can ask which text is not related with Advaita Vedanta. Which text is not related with Advaita Vedanta? And they give options. In four options, they can also give that Yoga Vasisth text. So Yoga Vasisth is based on Advaita Vedanta. What is Advaita Vedanta? Brahmavad. Brahmavad. We can also call it Agyatvad. Yoga Vasisth teachings are structured as stories and fables. In this Yoga Vasisth text, so many stories and fables in every prakaran, every sarg. Writer trying to give us more understanding. In simple stories, they want to give information. Okay, with a philosophical foundation similar to those found in Advaita Vedanta. This holds that whole world of things is the object of mind. It means Brahmavad, Agyatvad, what it means. It means this whole world of things, this whole world of things is the object of mind. These all things
whatever is present in this world, these are objects of mind, only are thinking of mind. Okay, these all are our mind's perspective. If we have no mind, if we have no ability to think, so this world is not for us, or we can say this world is nothing. Okay, this world is because we have mind, we have thinking. Okay, so this whole world is the object of our mind. The text is notable for expounding the principles of Maya and Brahma. This whole text is about the principles of Maya and Brahma. That this whole world is Maya and the one positive one is Brahma. Okay, this is principle also known as non-duality. Okay, Laghu Yoga Vasisht written by Abhinandan Ghosh. Total shloka nearly 6,000 verses. This is most important part. Laghu Yoga Vasisht written by Anand Ghosh. Total shlokas verses 6,000. Yoga versus 6 types. Jnana Yoga, Karma Yoga, Ashtanga Yoga. As like Bhagavad Gita is supreme text for Karma Yogis, same as Yoga versus is supreme for Jnana Yogis. In this text, there are too much knowledge about the culture, tradition, what is right, what is wrong, rules, regulations. Okay, the actual knowledge is written in this Yoga Vasisht. Commentaries on yoga versus this is most important part. Direct questions asked. Vasisht Ramayana Chandrika is written by Advarayan Narhari San. Tatparya Prakash is written by Anand Bodhendra Saraswati. Anand Bodhendra Saraswati, Tatparya Prakash. Bhasya on Yoga Vasisht is written by Gangadharendra. Bhasya on Yoga Vasisht is written by, yes, Rasika ji. Jaya, are you there? Everyone? यस सुन रहे हैं आप. Hmm. Okay. So, Bhasya on Yoga verses is written by Gangadharendra. Pada Chandrika, most important. Pada Chandrika is by Madhava Saraswati. Yoga Vasishta Hridamayu is in 7 parts by Kuppa Venkata Krishnamurti. These are the most important commentaries. Okay. Next is Yogvashist Ratnakaram by Swami Vidya Prakashananda Giri. If anyone can revise this in just short time, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका by Advarna Advar Adavarayan. Advarayan Narhari San. Then Tatparya Prakash by Anand Bodhendra Saraswati. Then Bhashya by Gangadharendra. Then Pad Chandrika by Madhava Saraswati. Then Yoga Vasisht Hridayam in the 7 parts by the Pupa Venkata Krishnamurti. Then Yoga Vasisht Ratnakaram by the Swami Vidya Prakashananda Giri. Yogvashist consists 32,000 verses. Laghu Yogvashist consists 6,000 verses. And Laghu Tara Yogvashist. Laghu Tara Yogvashist with 1,000 verses. Yoga Vasisht सार संग्रह योग वशिष्ठ सार संग्रह by Pujya Swami Tejomayanand with 86 verses. The smallest, shortest commentary on Yoga verses is written by Pujya Swami Tejomayanand with 86 verses. Yoga Vasisht Sar Sangraha. Okay, got it? Next is there are 6 chapters, 6 prakaran.
in Yog Vasisht. First chapter presents Lord Rama's frustration with the nature of life, human suffering and disdain for the world. This is the same Rama's same situation as the situation of Gautam Buddha. Okay, when he went out from his palace and he found many things like aged person, sick person, and so much suffering. Same condition here. Lord Rama's frustration with the nature of life, human suffering, and disdain for the world. Like, why are I am living in this beautiful palace, and people from out there is suffering from many problems. Okay, the Vairagya Bhavna, detached Bhavna, emotions is coming in his mind. In first chapter, there are every whole chapter discussion about this. Second describes through the character of Rama, desire of liberation, desire of liberation, emotions of detachment, vairagya, liberation, and nature of those who seek such liberation. Okay, this in this second chapter, second chapter, complete description about the what is liberation, and Lord Ram want or desire to get liberation, moksha, and get out from those beautiful things. And Excuse, nature of those, yes, excuse me, ma'am. Sorry to interrupt, ma'am. Can you do only briefly revision? No need to explain so much deep. It will take so much. okay, So okay, in okay, minutes, Nepali Jati, okay, no problem, we can. मैम थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए ना। okay. So, थोड़ा third briefly chapter, रहेगा. थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में क्या डिस्कशन होता है, वन दैट रिक्वायर्स सेल्फ एफर्ट एंड प्रेजेंट कॉस्मोलॉजी एंड ओके, इसमें ज्यादातर डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड के एग्जिस्ट के बारे में। ये जो अपना पूरा संसार है, वर्ल्ड है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे ये आया, कैसे ये बना। ओके, थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर में ह्यूमन का कैसे ह्यूमन आया इस वर्ल्ड में, ठीक है। उत्पत्ति उत्पत्ति और यही प्रकरण है शायद। फिफ्थ चैप्टर में है मेडिटेशन एंड इट्स पावर एंड इसमें ज्यादातर ध्यान और इसके बारे में बताया गया है। लास्ट चैप्टर इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन एनलाइटमेंट, मोक्ष के बारे में, डिटैचमेंट एंड ब्लिसफुल रामा। ओके, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है, राम को समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पर इस पैलेस में रहकर भी, अपने इस राजा के पद पर रहकर भी मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। आई कैन गेट लिबरेशन। दीज आर द सिक्स प्रकरण: वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उत्पत्ति एंड स्थिति प्रकरण, उपशम, निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण टू पार्ट, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। ओके, लार्जेस्ट प्रकरण निर्वाण प्रकरण। ओके, एंड विच पार्ट ऑफ निर्वाण? Last part of Nirvana Prakaran is the largest, and Sarg is also highest in Nirvana Prakaran Uttara. Okay, in Nirvana Prakaran, the discussion about the main liberation, Vidya, Tattva Gyan, four shades of world, four shades of world. Okay, that's all. So next is Vairagya Prakaran. In this Prakaran, there is discussion about renunciation, Vairagya. Okay, when a person gets tired in the bones of world due to desires and desires like attachment, illusion, greed, anger, lust, जो भी है ये पूरे संसार में माया का जाल है, तो ये उनको समझ में आ गया है और वो चाह रहे हैं कि इस माया से मैं बाहर निकलूं। ये वैराग्य प्रकरण में। मुमुक्षु प्रकरण में मेथड्स ऑफ
अटेनिंग सैल्वेशन, व्हाट आर द मेथड्स, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके मेथड्स क्या है, उसका नेचर क्या है, मोक्ष एक्चुअली मोक्ष क्या है, एक्चुअली मोक्ष सैल्वेशन क्या है। तो अगर आपको किसी को बताना हो ये कि सैल्वेशन मोक्ष क्या होता है तो आप ये डायरेक्ट उसको रेफरेंस दे सकते हो विद रेफरेंस योग वशिष्ठ सेकंड प्रकरण मुमुक्षु प्रकरण। ओके, नेक्स्ट इज फोर द्वारपाल is also mentioned in Mumukshu Prakaran, some, Vichar, Santosh and Sadhu Sangam. These are the four Dwarpals. Okay, direct question can ask in exam. What are the four Dwarpals? Four Dwarpals are discussed in which text? Like this, okay? This is Utpatti Prakaran. Okay, so we should move directly. Okay, no problem. Utpatti Prakaran. To attain salvation, world is needed as a medium, hence the world comes into existence. उत्पत्ति प्रकरण, आपको मोक्ष समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, एक ह्यूमन का जन्म आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी मोक्ष। ऐसे ये बोलते हैं अगर आप दूसरे कोई अलग किसी भी प्रजाति में अगर पैदा होते हैं, अगर आप सांप बिच्छू हाथी घोड़ा कुछ भी बनते हैं तो आपको मोक्ष नहीं समझ आएगा, आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप वर्ल्ड में तो आ गए हैं पर आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक बॉडी चाहिए, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो ये सभी चीजें उत्पत्ति प्रकरण में बताई गई हैं कि वर्ल्ड क्या है, कैसे इसका क्रिएशन हुआ है, जीव कैसे आया है, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये कैसे आया है, इसका माइंड क्या है और इसमें चित्त है और ये सब, ठीक है। और आपको और इसकी ये भी बताई गई है कि जो हमारा चित्त है इसको और भी एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइंडफुल बॉडी, मनोमय शरीर को इन्होंने और डिस्क्राइब किया है इस प्रकरण में और इंस्पायर किया है सभी को कि आपको गुड डीड्स अशुभ कर्म करने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड चित्त क्लियर रहे, साफ रहे, प्योरीफाई रहे। देयर आर 14 कैटेगरीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, 14 कैटेगरीज लिविंग बीइंग की बताई है उत्पत्ति प्रकरण में, बट फंडामेंटली ब्रह्म इज ओनली वन, बट सुपीरियर ब्रह्म ही जो है जो सिर्फ एक है। वैसे 14 कैटेगरीज बताई गई है उत्पत्ति प्रकरण में योग वशिष्ठ में। नेक्स्ट है स्थिति प्रकरण, इसमें स्थिति बताई गई है, कंडीशन। ओके, क्या कंडीशन है, साधक की क्या कंडीशन है। ओके, in this episode it has been explained that what is the condition of seeker, क्या लेवल है, लिविंग लाइफ इन द वर्ल्ड और इन ब्रह्मवाद, अगर हम इस वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारी क्या स्थिति रहती है, अगर हम इसको छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो हमारी क्या कंडीशन रहती है। जनरली लिविंग बीइंग जब हम हैं इस ग्रह अवस्था में, जब हम हैं तो हम 3 स्टेट्स होती है हमारे पास, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप। डीप स्लीप, these are the 3 states of living being. Okay, जागृत, सुषुप्ति, तुरिया। डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी एंड अज्ञानी भी बताया गया है। ये भी एक स्थिति है कि ज्ञानी होगा तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस टाइप का वो होगा, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब स्थिति प्रकरण में बताया गया है। मैम हेलो मैम, जी, कि वो जो आप 3 अवस्था बोले ना, जागृत, सुसुप्ति और तुरिया, ना जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तुरिया, स्वप्न नहीं हाँ, होगा क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ओके ओके मैम, Yes, हाँ right. जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। Okay, this is Upasham Prakaran. In this episode, it has been told that how all problems in. Okay, in this we will discussion about Purusharth. There are 4 Purusharth. Can anyone tell me those 4 Purusharth names? धर्म अर्थ काम मोक्ष। Very good. Dharma, Kama. And in this Upasham Prakaran, Upasham,
Fifth or sixth prakaran, we'll discuss about study of scriptures, company of good men, sadhu sang, renunciation and practice, अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ओमकार चैंटिंग, ओमकार कंtemplation मीन्स आपको अपने अंदर समाहित करना है ओमकार को, ओमकार चैंट कैसे करते हैं उसका होल नॉलेज, प्रत्याहार, मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, हाउ कैन वी गेट तत्व ज्ञान, व्हाट इज द एक्चुअल तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान एक्चुअल में है क्या, किसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज बोलते हैं, जो वशिष्ठ जी के द्वारा राम को दी जा रही है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टेट ऑफ लाइफ फ्री महात्मा, जो मुक्त हो जाते हैं, जो साधु हो जाते हैं, तो उनकी क्या डिस्क्रिप्शन, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर हो, क्वालिटी होती है, ये हम उपशम प्रकरण में है। नेक्स्ट इज निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध। इसमें और हम देखते जाते हैं ज्ञान के पर्सपेक्टिव में, और हम देखने जाते हैं ट्रू नॉलेज, प्राण कंट्रोल, हम कैसे हमारे चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास राइट नॉलेज होगी, एक्चुअल नॉलेज होगी, तो हम हमारे चित्त को शांत रख सकते हैं। ये हम और भी एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि जो आदमी उतना ही शांत होता है जब उसको ज्ञान हो जाता है, राइट नॉलेज होता है उसको, तो वो शांत रहता है। और अगर आपका प्राण कंट्रोल है, रजोगुण नहीं, सात्विक सतोगुण, प्राण कंट्रोल में होगा तो आप राजसिक नहीं होगे, आपका मन आपके वश में होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ विद्या एंड अविद्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। विद्या एंड अविद्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ विद्या विद्या इन निर्वाण प्रकरण। ओके, नेक्स्ट इज निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर सेट्स, सेंसेशन, इमोशन, लस्ट एंड इमेजिनेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट मैन। ओके, द ग्रेट मैन मीन्स हियर जो एक्चुअल में समझ जाता है सभी चीज और विवेक बुद्धि से काम करता है, तो वही उसी को यहाँ पर ग्रेट मैन बोला गया है। ग्रेट मैन इट इज सो द फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ सुप्रीम गुड एंड salvation has been achieved, the description of these seeds, जो ये चार सीड्स हैं इस पूरे संसार के, उनको हम कैसे खत्म, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं बाय द एक्चुअल नॉलेज ऑफ गॉड एंड मोक्ष, salvation। ओके, नेक्स्ट इज फोर द्वारपाल से, फोर द्वारपाल है शम, पहला है शम। इसमें क्या होता है, एक तरीके से शम को हम पीस, शांति से रिलेट कर सकते हैं। ओके, जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही हम हमारे काम जो है, हमारी बॉडी भी उतनी शांत रहेगी, हम ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। सम मीन्स पीस, डायरेक्टली इसको इतना ही समझेंगे कि सम एक पीस, शांति। विचार, conditions of principles of Veda Vedanta that attain status in the form of God are decided by thought। ये यहाँ बता रहे हैं आपके विचार ही है जो आपको और अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इट्स एवरीथिंग इज योर थॉट्स, योर विचार, which make you a great man. This is a great medicine for the disease of this world. Through vichar, if you are a great thinker, through your thoughts, it sharpens your intellect and sees the ultimate destination. So, vichar, vivek vichar is very important if you want to get rid of this whole world. Okay? Santosh, contentment. Santosh means satisfaction, satisfy of everything.
whatever you get, if you are getting so much happiness, so much um, sorrows, same condition you had earlier studied in Bhagavad Gita, मान अपमान यश अपयश सभी में आपको सेम रहना है, सुख दुख. So this is the satisfaction. If you have this uh, santosh, contentment, who have drunk the nectar of contentment get incomparable enjoyment. So that person is always remain happy, enjoyment, remain in enjoy. Okay, and goddess Lakshmi is always present on the face of that santoshi person. Clear? Satsangati, good company helps everywhere in spreading the ocean of world. One should not abandon good company. It greatly enhances the intelligence, destroys ignorance and removes mental distress. अगर आपके पास सत्संगति है, आप सत्संगति में बिलीव करते हो, आप सत्संगति का यूज करते हो, आप साधु संग, आप अच्छे लोगों के चरण में बैठते हो, तो ये आपका इन्हांस करता है आपकी विवेक बुद्धि का, और आपके अंदर जो भी अविद्या है, अज्ञान है, उनको रिमूव करता है. क्योंकि साधु सत्संगति में वो पावर होता है जो आपके विचारों को अपग्रेड करता है. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो सम है वो हमारा अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सबसे बड़ा सुख है. विचार अल्टीमेट विजडम, सबसे बड़ा सर्वोत्तम ज्ञान है. संतोष सर अल्टीमेट वेलफेयर. सत्संगति अल्टीमेट स्पीड, अल्टीमेट सबसे बड़ी गति है. क्लियर? ज्ञान सप्त भूमिका शुभेच्छा विचार तनु मानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थ भावनी एंड तुल्यता. तो दीज आर द 7 ज्ञान भूमिका. शुभ इच्छा गुड डिजायर, विचारणा विवेक बुद्धि, ग्रेट थिंकिंग, तनु मनसा मन को तनु करना, सूक्ष्म करना, डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रेस द मन. ओके, मन को हमें और कम करना है, मन की कम चलानी है. मन हमारा बहुत चंचल है, तो उसका जो भी वो सोचता है, बार बार मन इधर उधर भागता है, उसको हमें तनु छोटा करना है, कम करना है. मन को हमें ज्यादा चंचल नहीं बनाना, इसका मतलब ये है. बिल्कुल हमें क्षीण कर देना है उसको. सत्वापत्ति, सत्व की उत्पत्ति, सत्वगुण की उत्पत्ति. असंशक्ति, डिटैचमेंट की भावना, इमोशंस ऑफ डिटैचमेंट. असंशक्ति, नॉट रिलेट विद, नॉट कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड. पदार्थ, पदार्थ अभावनी, पदार्थ अभावनी, पदार्थ का अभाव. whatever in this world, we the lack of those world, those things. And last is turyega. Okay, and these are their characteristics. तनु मानसा असंग भावना, सत्वपत्ति विलापिनी, असंशक्ति आनंद रूपा. असंशक्ति is आनंद रूपा. If you are following असंशक्ति, so definitely you will get anand. असंशक्ति is the a type of anand. पदार्थ भावनी स्वसंभव स्वसंवेदन रूपा, संवेदन रूपा. It means it is if you following padarth abhavni, so you can more understand yourself. Swasamvedan rupa means your perception, your sensation, you are more active about that. These are the appellations. Subhecha, Vicharana, Tanu Mansa. These came in Jagrit Avastha. These came in Jagrit Avastha. Sattva-patti in Swapna Avastha. Asan-sakti in Sushupta Avastha. Padarth Bhavani in Turiya, deep sleep, and Turyaga in Turyatit. These are important parts.
Question asked, like like match this. Okay, Subhecha is matched with Jagrit, Satvapatti, Swapnam, Turyagain, Turyati, Padartha Bhavani, Turya, Deepsi. Subhecha is, we can get Subhecha by Shravan. We can improve our vichar or vivek buddhi by deep thinking, manan. Tanu mansa by nidhi dhyasa. And these are the Jivan Mukta. These are the names. If you are, uh, if you can reach at that point, Satvapatti, then you can call as Brahmavit. If you reach at Asansakti, you can call Brahma Vidvara. If you reach at Padartha Bhavani, you can call as Brahma Vidvarayan, Vidvaryan, and Turyaga we call as Brahma Vidvarishtha. Okay, this is the characteristic of that person, or we can also say that these are the tagline. If you are reaching at that level, we can call as you these names. Subecha, auspicious resolve, vicharna, this is the reflection, tanumansa, attenuation, thinness of mind, attenuation, thinness, shortness of mind, sukshma, satvapati, attainment of sattva, निर्विकल्प समाधि असंशक्ति desirelessness attained by repeated practice of nirvikalpa samadhi. Important part, how can you got असंशक्ति by repeated practice of nirvikalpa samadhi. पदार्थ अभावनी, पदार्थ का भाव हो गया, objectlessness हो गया. You have no any attachment or desire of getting any object. Turyega, transcendence, no return to the awareness of world. You are not giving anything to this world. You are different from this world. If you are, or yes, आप इस पूरे वर्ल्ड से अलग हो गए हैं तुरीय का अवस्था में. वर्ल्ड इज अनदर वन एंड यू इज अनदर एट द तुरीय का अवस्था. आधिव्याध, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. मेन नाड़ी 100 मेंशन इन योग वशिष्ठ. प्रमुख नाड़ियां 100 हैं और वो उन सभी में जब फ्लेगम, फ्लेम, कफा, बाइल, इन तीनों का इंक्रीज हो जाते हैं ये चैनल्स में फूड और जूसेस ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो प्राण डिस्टर्ब होता है. प्राण एक जगह स्टेगनेंट हो जाता है, जिसको हम ये भी समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाती है हमारी आर्टरीज में. ये वही कंसेप्ट इधर भी बताया है, सेम कंसेप्ट. प्राण हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है हमारी नाड़ीज में, स्टेगनेंट हो जाता है, और ये एक रीजन होता है हमारी बीमारी का, कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस. एंड लैक ऑफ नॉलेज, अभाव, ज्ञान के अभाव में भी इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं डेली लाइफ में. whenever we have less knowledge of getting any work, so definitely we got injured or any physical or mental disease we got if we have lack of knowledge about that. Types of disease, this is important, very important. व्याधि एंड आदि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में, आता ही है. व्याधि है ड्यू टू री इमरजेंस, इनका और कारण बताया है, कोज बताया, ड्यू टू री इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स. आपकी ऐसी गलत इच्छाएं या बहुत बुरी इच्छाएं या अंदर की कोई इच्छाएं जो बार बार री इमरजेंस हो रही है. स्टुपिडिटी, मिसडीड्स, गलत अगर आप काम कर रहे हो, लिविंग इन बैड प्लेसेस, गलत जगह रह रहे हो, बैड टाइप के थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके नर्व्स में फूड की सप्लाई नहीं हो रही. इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, नो एंट्री ऑफ फूड इनटू द नर्व्स.
मीन्स ऑक्सीजन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही है नर्व्स में, या प्रॉपर उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हम इनको समझेंगे। तो पॉज हो जाता है। अग्रवेशन ऑफ वाता बाई फ्लम, जब डिस्बैलेंस हो जाता है वात पित्त कफ का, ये भी एक रीजन है व्याधि का। बाइटिंग बैड फूड या बासी भोजन खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आदि का कारण बताया गया है मेंटल एफ्लिक्शंस का। दिस हैज बीन अचीव्ड ड्यू टू द माइंड गेटिंग एंटेंगल्ड इन द पैशंस ऑफ हेट्रेस। जब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अम, इस तरीके से फीलिंग्स आती हैं आपको दूसरों के प्रति, सो डेफिनेटली यू विल गेट आदि, दिस इज mental affliction. Not at that time, in future, due to lack of knowledge and control of senses. This is okay. ये भी एक रीजन है आदि का बढ़ने का। क्या रीजन है? जब आपके पास ज्ञान की कमी है और आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे तो हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी सोचेंगे। ठीक है, जैसे मेरा मन करेगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ना, और वो पॉसिबल नहीं है इतनी इजी, तो डेफिनेटली मुझे हर्ट करेगी जब वो मेरा पूरा नहीं होगा, मेरी जो इच्छा है, डिजायर, वो सबमिट नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी, तो मुझे प्रॉब्लम्स होंगी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। इन दिस वे, बाई वरिंग डे एंड नाइट, रात दिन चिंता करने से आधी अराइज हो जाता है हमारे माइंड। ओके, व्याधि, it has two types, adi vyadi and anadi vyadi. This is very important table. Adi is two part, adi vyadi and anadi vyadi. Adi and anadi, just focus on this, adi and anadi. Now adi has two parts, sar and samanya, and anadi has no part. So adi is which is related with सूक्ष्म, ओके, जो बिल्कुल छोटी चीज से जुड़ा हुआ है, छोटी चीज से नहीं, बिल्कुल हमारे बेस से जुड़ा हुआ है। सार क्या है? जो हमारा कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है, जैसे ही हम पैदा हुए हैं उसी टाइम हमारे पेट से ही वो, जैसे ही हमारा बर्थ हुआ है तभी से वो प्रॉब्लम है, तो हो गई सार, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। और सामान्य साइकोसोमेटिक, वो हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस से हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हमने बहुत सारा शुगर खाया और अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं किया तो हमें सामान्य हो गया, सामान्य डिजीज हो गई। ओके, हमने अपने मन पर ध्यान नहीं दिया, हमारा मन बहुत चंचल है, हमने कुछ कुछ सोचते रहे फुलफिल नहीं हुआ, हमें प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। ठीक है, हम डिस्ट्रेस होने लगते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, धीरे धीरे और ज्यादा प्रॉब्लम्स वो हमारा फिजिकल में भी आने लगता है, जॉइंट पेन, मसल पेन, एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज अनादि। अनादि, इन दिस वी रिलेट विद एवरी इंजरी, ओके, जिसका हमारे पीछे से हमारे हमारे मन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। अनादि व्याधि जो है वो डायरेक्ट होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, डायरेक्ट बैक्टीरिया आया हमारे शरीर में और हो गया, वायरल हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया, एनी इंजरी, इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया डायरेक्ट। सो दिस इज सडनली, ओके, नॉन स्ट्रेस रिलेटेड टाइप्स ऑफ डिजीज। सामान्य सात, तो सामान्य आर द हंगर, थर्स्ट। सामान्य कैसे होती है उसका रीजन दिया है, सामान्य कैसे होती है, साइकोसोमैटिक, बाय हंगर, थर्स्ट, गेटिंग वुमेन्स एंड डिजायर फ्रॉम आउटर फैक्टर। अगर हमारी ये इच्छाएं होती हैं तो हमें सामान्य डिजीज हमारी शुरू हो जाती है। और सार, हेरिडिटी, हेरिडिटी कब होता है? या तो हमारी
अज्ञान है हमारा, हमारे अंदर अज्ञान है, तब हमारे हेरिडिटी फैक्टर होता है, या हमारे पूर्व जन्म संस्कार ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं, तभी हमें हेरिडिटी फैक्टर हुए हैं। सार डिजीज हुई है, व्याधि जनरेट फ्रॉम आदि। ओके, so this is it. Without self knowledge, essence of disease does not disappear. Okay, so सार का मतलब ये हुआ। आगे बताया है व्याधि जनरेट फ्रॉम आदि, इफ आदि एंड फ्रॉम रूट। अगर हमने आदि पर कंट्रोल कर लिया है तो हम व्याधि पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव फोकस ऑन आदि, आर मेंटल पीस, आर मन, चित्त। So how can we cure from all the diseases? So by chanting mantras, by food and juices, means by diet, by mantra chant. Sorry, which type of mantra? Mantra of Panch Mahabhut. For Vayu, Yam, Ram, Vam, Lam. This type of mantras, these mantras we can chant. How treatment Adi in your wishes? What's the Adi treatment? When mind becomes pure, happiness increase in body as a result of vital gets purified and food gets digested properly. So हमें किसी भी प्रकार से मन को कंट्रोल में करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को साफ रखना है। यही एक रीजन है आदि को कम करने का। पंचकोश है, पंचकोश का डिस्क्रिप्शन है हमारे योग में। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। These are the 5 koshas. Anandamay is the uppermost, okay, the deepest kosha, and Annamay is the outermost kosha, outermost, which builds up physical body, okay, which builds up physical body. Through Anna, we are हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, अभी हम इतने बड़े हुए हैं, जन्म से अभी तक हम इतने बड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ अन्नमय कोशा। हम प्राण को कंट्रोल करते हैं बिकॉज ऑफ प्राणमय कोशा। हम मन को कंट्रोल करते हैं, बात से कफ को बैलेंस करते हैं, मनोमय कोशा। हम राइट और रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, अब हमें इस वक्त क्या पढ़ना चाहिए, हमें मैम की क्लास लेनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, या घूमना चाहिए। So that is all decided by Vijnanmay Kosh. Anandamay Kosh, at this Anandamay Kosha, you are free from all desires, all thinking. You are not attached with anything. आनंदमय कोश में जब आप पहुंच जाते हो, आपकी कोई इच्छाएं नहीं होती। These are the 8 limbs of dhyana: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi. Same is are the 8 limbs of mentioned in Yog Darshan. Same here is 8 limbs of dhyana mentioned in Yoga Vasishtha. After that, are the development of Sattva Guna. How can you develop Sattva Guna in yourself? There are 12 types of pragya. So these are the names of pragya. Names of pragya. Through these pragya, these type of brain or intellect, you can develop your Sattva Guna. Idam Prathamata, गुण पितारी, समत्व, इक्वलिटी, अधम सत्व, एक्सट्रीम तामसिक, राजसिक, राजसात्विकी, राजसी, राजसी तामसिक, राजसत्यंतमसी, तामसी, तत्व, तम सत्व. So question, how can question ask in exam? Question ask in exam, how can we, how many types of pragya develop of which develop sattva guna in human body mentioned in Yoga Vasishtha. So 12 types of pragyas. Okay, if you can remember all those names, so that's great. If you are not able to learn it, so no problem. Just learn 12 types of pragya. This is important.
Why are these 12 types of pragya? What are they doing? They are developing our sattva guna in ourselves. Okay, so this is it. Two margs mentioned in Yoga Vasisht, pravritti and nivritti. Pravritti is one who desires heaven, and nivritti, those one who desires the path of salvation. All sadhus are coming in this. Okay, all detachment person, all which have detachment feeling of their from their family, this whole world. So that person is moving in nivritti marg. Otherwise, all the persons which are living in this world have desires of richness, place, beautiful home, house, son, daughter, wife, beautiful wife. So these are desires in pravritti marg. Okay, so you can decide where are you now, in which marg, and what's your goal. This is very important. Meaning of yoga is mentioned in Nirvana Prakaran, this sixth Prakaran, 13 Sarg, 3 Shloka. Yoga is state of crossing the worldly ocean. इस संसार, ये जो समुद्र जैसा ये संसार है, इसको क्रॉस करना, इसको पार कर जाना ही योग है. और पार हम कैसे करेंगे? बाय योग अभ्यास, बाय चैंटिंग, बाय कंट्रोलिंग प्राणायाम, बाय कंट्रोल प्राण. Okay, so this is important. Two types of solution to merge the mind. First is तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान. सेकेंड इज प्राण निरोध, प्राण को कंट्रोल करना. ओके, स्टोरी ऑफ शुक एंड राजा जनक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज. शुक और राजा जनक की स्टोरी. इसमें जो शुक होता है, शुक जो होता है वो वेद व्यास के, इसका इनका पूरा नाम शुकदेव होता है. शुकदेव ये वेद व्यास जी के पुत्र होते हैं, सन होते हैं. और इनको खुद पर विश्वास नहीं होता है कि इनको हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिसमेंट में ये है. इनको हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस मिल चुका है. ये इनको डाउट होता है खुद पर. तो खुद पर डाउट होता है, इनको सेल्फ डाउट होता है. तो इनके जो फादर हैं वेद व्यास जी, इनको राजा जनक के पास भेजते हैं. और राजा जनक इनका हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इनका एग्जाम लेते हैं, इनको एग्जामिन करते हैं. इनके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियां, धन और घोड़े, ये सब इनके सामने देते हैं इनको. बट जो सुखदेव है वो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होते इन सभी चीज से. वो निस्वार्थ भाव से नॉलेज लेने के लिए वो राजा जनक के पास आते हैं. ओके, इज ओनली एम टू गेट द रियल नॉलेज फ्रॉम राजा जनक. राजा जनक इनसे बहुत प्रभावित होते हैं. इनको अच्छा लगता है कि yes, Sukhdev is a great man. He is not getting disturbed from all those worldly desires. So definitely he is a great man, or he has the highest state of bliss. Okay, these are the questions. Who is, yes, one by one tell. Who is author of Vasishtha Gita? Simi. Simi ji. Yes, Lipalika ma'am. Adi Kavi Valmiki. Yoga Vasishtha is based on which principle? Advaitavad. What is called physical affliction in Yoga Vasishtha? Adi Vyadi. Vyadhi. Vyadhi. Vyadhi only. What is called physical affliction, not mental affliction? Eyes. Vyadhi. Vyadhi only. According to our Ramayana text, what is the cause of Vyadhi? Vyadhi का कारण क्या है? व्याधि का कारण क्या है? Lack of knowledge, eating bad food, re-emergence of wrong desires, worrying day and night. Worrying day and night. Re-emergence of strong desires. Lack of knowledge.
So these are the main cause of Vyadhi. First, third, and fourth. Okay. Next is given two statements indicate the principle of agnosticism are followed in Yoga Vasisht. Agnosticism means Advaita Vedanta, non-duality. According to Maharshi Vasisht, world does not exist, only Brahma exists. So both are true. Assertion and reason are true, but they have no any relation. Okay, they have no any relation. Here is description about describe Maharshi Vasisht and Brahma existence. And here is the principle of Yoga Vasisht. Okay, both are right but different things. So both A and R is true, but R is not the correct explanation of it. ओके अगर एक्सप्लेनेशन होता तो ये प्रिंसिपल ऑफ एग्नोस्टिज्म को और समझाते क्लियर करते लाइक नॉन डुअलिटी अद्वैत वेदांत ऐसा कुछ बताते ठीक है पर इन्होंने रीजन में महर्षि वशिष्ठ के अकॉर्डिंग एक ट्रुथ दिया है ठीक है क्लियर है इसमें आंसर सेकंड four pillars of salvation. What are the four pillars of salvation described in which prakaran? These are mentioned in Mumukshu Vyavahar Prakaran. How can an individual control his or her mind? By two things. Okay, we had discussed by two things we can control mind. Control of prana and Atmagyan, also known as Tattvagyan, also known as right knowledge, actual knowledge, true knowledge. Okay, so through these two, one can control mind. Definition of yoga described in Yoga Vasisht in which prakaran? Nirvan Purvat. Okay, क्या था? Yoga is the state in which you crossing the worldly ocean. इस संसार समुद्र से पार होने की स्थिति ही योग कहलाती है. निर्वाण पूर्वार्ध में है ये 6:13 में. क्लियर सभी को? एनीवन डाउट? मैम आदिवादी कौन सा प्रकरण में मेंशन है? आदिवादी बहुत सारे प्रकरण में मेंशन है, कोई एक स्पेसिफिक में नहीं है. क्या है समझ में नहीं आ रहा है मैम. सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रकरण में मेंशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किस प्रकरण में है. आदिवादी आया है क्वेश्चन मेरे से, मैं देखा इसीलिए मैं पूछ रही हूँ. अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन आया है? या मैम इन व्हिच प्रकरण आदिवादी इज मेंशन? Okay, so first we had go through here we mentioned मैम निवारण प्रकरण भी है. निर्वाण प्रकरण में ही है योगा डेफिनेशन हाउ कंट्रोल माइंड बाय तत्व ज्ञान एंड कंट्रोल प्राण विद्या. तो इसी में ही निर्वाण प्रकरण में ही आदि व्याधि का डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्राइब ऑफ ऑप्शन में है निर्वाण प्रकरण. हाँ मैम, हाँ लेकिन क्वेश्चन, हाँ मैम, हाँ निर्वाण प्रकरण. हाँ, निर्वाण प्रकरण आएगा इसका. ठीक है, प्रकरण पूर्वार्ध में, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में ना मैम. जी. अगर दोनों आते हैं तो आप प्रकरण पूर्वार्ध में बताएंगे, अगर सिर्फ निर्वाण आता है तो आप निर्वाण बताएंगे. ओके मैम. Okay, get it? Anyone have other doubts? So we Ma'am, can ask. So I'm saying
have doubt. Um, Yes, Nipalika ji, I yes, did not get your point. Pardon. I I told ma'am I have one doubt. Means योग वशिष्ठ में बनने योग योग की पद्धति, जो पद्धति है ना, हम जो हिंदी मीडियम के स्लाइड में देखा है, लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम में नहीं है शायद। तो थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या मैम? कि जो एक, क्या एक्सप्लेन करना है? यस मैम। क्या एक्सप्लेन करना है? मैम आई कुड नॉट गेट इट व्हाट यू आर टेलिंग मैम। क्या एक्सप्लेन करना है? What you want to explain to me? Yes, ma'am. I am telling you, ma'am. Means that Yoga Vasishtha, in Yoga Vasishtha, how the methods are mentioned. Means questions are came. We saw when we did revision, means revision test by a student ourselves. So we saw the questions are many come. Means if one need to one need to establish एकत्व की दृढ़ भावना। इंग्लिश में थोड़ा मेरे को नहीं आ रहे, मीन्स क्या बोले वो योग वशिष्ठ में क्या मेंशन है, क्या करने के लिए पद्धति, मनोलय स्थिति, प्राण निरोध, वो सब मेथड्स आ रहे हैं मैम। थोड़ा हम तो देख रहे स्लाइड, लेकिन आप थोड़ा समझा देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो आप मुझे एक बार क्वेश्चन दिखाओ, हम उसको क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। मैम मैं एक आपको भेज रही हूँ वो ग्रुप में, एक स्लाइड्स का मैं स्क्रीनशॉट लिया था, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, मुझे भेज दो, हम भेज एक बार दिया, डिस्कस ग्रुप में करेंगे। भेज दिया, थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा आप रिवीजन करा लेंगे तो ये रिमाइंड में नो रजिस्टर। प्रॉब्लम। ग्रुप में भेजना है उसने। या मैम। Just give me 1 second. Okay. Uh, हम्म, ये है, क्या दिख रहा है सभी को? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति। योग वास्तव में तुरीयावस्था है। योग एक्चुअल में क्या है? तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था का अर्थ समाधि या समाधि की शुरुआत है। मतलब योग वशिष्ठ में योग को क्या बताया गया है? जो हम लास्ट स्टेज पढ़ते हैं अष्टांग योग में, समाधि, समाधि को ही इन्होंने योग बताया गया। समाधि को ही इन्होंने तुरीयावस्था बताया गया। तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पद्धति का पालन कर सकते हैं हम। एक तत्व की दृढ़ भावना रख सकते हैं। एक तत्व की, एकत्व की दृढ़ भावना है। मीन्स दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ओनली ब्रह्म इज ओनली वन, ब्रह्म इज सुपीरियर, दैट इज एकत्व की दृढ़ भावना। ओके, इस पूरे संसार में सब माया है, ब्रह्म ही सुपीरियर है, ब्रह्म ही एक सब है जो, जिसको हमें फॉलो करना है। एकत्व की दृढ़ भावना। मनोलय, मन का लय करना, ये एक पद्धति है या एक प्रैक्टिस है, मनोलय, जिसमें हम ध्यान करते हैं, हमारे मन को कंट्रोल करते हैं,
नेक्स्ट इज प्राण निरोध. प्राण निरोध, प्राण कंट्रोल. These are the three पद्धति और methods to get तुरीयावस्था. ठीक है. एकत्व की दृढ़ भावना में क्या आएगा? तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है. एकत्व की दृढ़ भावना के उपाय है ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवल भावना. तो मैंने आपको डिस्कस किया था एकत्व की दृढ़ भावना का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ही एक सुपीरियर है, इसको हमेशा अपने मन में स्थापित करना, और जो भी कुछ है वो सब वेस्ट है, माया है. नो यूज ऑफ अस, नो यूज ऑफ दैट होल वर्ल्ड फॉर अस. ओके, so these are thinking came in एकत्व की दृढ़ भावना. ओके. ओके मैम. इसमें आता है ब्रह्म की भावना, ब्रह्म की उपासना कर रहे हो आप. अभाव भावना, भाव भावना का मतलब आपको किसी की इच्छा ही नहीं है, सभी का अभाव है, किसी का भी किसी के भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको. नेक्स्ट है केवल भावना. केवल भावना में भी यही बात आती है कि केवल एकमात्र ईश्वर है, ब्रह्म है और कुछ नहीं. तो दीज आर थ्री पद्धति. एकत्व की दृढ़ भावना. नेक्स्ट है मनोलय. मनोलय में आता है मन ही संसार को उत्पन्न करने का तथा चलाने वाला है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पहले इंट्रोडक्शन स्लाइड में. ये जो सब पूरा संसार है, वर्ल्ड है, ये हमारे मन का ही खेल है. मन ने ही इसको चित्रित किया है, इसको पिक्चर फॉर्म में दिखाया है. इफ वी हैव नो मन, तो दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग. ये संसार कुछ है ही नहीं अगर हमारा मन नहीं है तो. मन ही संसार को उत्पन्न करने का, चलाने वाला है. मन के शांत हो जाने पर प्राण भी शांत हो जाते हैं, प्राण का स्पंदन रुक जाता है, जो चंचल प्राण है वो स्थिर हो जाते हैं. अब मनोलय के उपाय क्या क्या है, हम किस तरीके से मन को शांत कर सकते हैं? ज्ञान युक्ति, मतलब तत्व ज्ञान, ज्ञान की युक्ति हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है. संकल्प भावना, डिटर्मिनेशन आता है आपके अंदर, निर्णय करने की क्षमता आती है, संकल्प भावना. नेक्स्ट है वासना त्याग. आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो आपको और माया में भेजती है, ऐसी इच्छाएं, ऐसी वासनाएं, आपको बेटा चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पैसा, धन दौलत, रिचनेस चाहिए, तो दीज केम इन वासना. तो इन सभी का त्याग करना है आपको. अहंकार का त्याग करना है, ईगो का त्याग करना है, असंग का त्याग करना है. मतलब हमें ज्यादातर क्या होता है, हमें इच्छा होती है कि हम किसी के साथ रहें, हम पेरेंट्स के साथ रहें, हम अपने फ्रेंड के साथ रहें, या अपने पार्टनर के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें. तो ये जो भावनाएं हैं संग की, इसको दूर करना है ना. हाँ, यही है इसका मतलब, संग का त्याग आएगा, ये असंग का त्याग नहीं होगा. असंग का त्याग नहीं है, इधर संग का त्याग है. ठीक है. जैसे मोक्ष हमें कब मिलेगा? जब हम संग का त्याग करेंगे, है ना. कर्तव्य भाव का त्याग करेंगे, सर्व त्याग, सबका त्याग कर देंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे. समाधि का अभ्यास, लय क्रिया, ये आ जाती है सब हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी योग, वो सभी. तो मनोलय हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. यस, वेरी राइट लिपालिका जी, थैंक यू सो मच. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना. ये हमें डिस्कस करनी चाहिए थी. कोई बात नहीं, हम अभी कर रहे हैं. तो मनोलय के क्या क्या उपाय बताए गए हैं? ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भोगों में विरक्ति होनी है, वासना का त्याग करना है, अहंकार का त्याग, संग का त्याग, सर्व त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग. मतलब ये काम मैंने किया है, ये भी भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए. समाधि का अभ्यास करना है,
लय क्रिया का अभ्यास करना। लय क्रिया मतलब हम लय हो जाए, ईश्वर में, ब्रह्म में लय हो जाए, उसी का अभ्यास करना है। नेक्स्ट है प्राण निरोध। थर्ड पार्ट इज प्राण निरोध, नो फोर्थ। प्राण निरोध हम कैसे करेंगे? इसमें हम आता है हमारा प्राणायाम। जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। प्राण निरोध के क्या उपाय बताए गए हैं? पूरक, रेचक, कुंभक आदि के अभ्यास से स्पाइन के समान समान स्थिर हो जाना है, मेरु के समान स्थिर हो जाना है। जैसे हमारी स्पाइन बिल्कुल स्थिर है, उसी प्रकार से पूरक, कुंभक, रेचक के अभ्यास से शांत हो जाना है। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but here I could not get means पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना। मेरु के समान, जैसे हमारी स्पाइन बिल्कुल स्थिर रहती है ना, हमारी स्पाइन जो है, हाँ, हमारी स्पाइन है वो मन की तरह थोड़ी ना भटकती रहती है। मन तो एक सेकंड में हमारा अमेरिका चला जाता है, स्पाइन बहुत स्थिर है ना। लाइक मेरू नहीं समझ रहे हो आप, यहाँ मेरू मत समझो आप, तो यहाँ तक माउंटेन लो, मेरू पर्वत, यस। जो माउंटेन का बिल्कुल स्थिर रहता है ना, उसी प्रकार से जब हम प्राणायाम का बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे प्राण है वो भी बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। Okay, इधर means उधर नहीं। हाँ comparing. Comparing हाँ, means जितना if we control the breath, then our mind will be stable like a mountain. यस, वेरी गुड। पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना है, कुंभक के अभ्यास से प्राण का संबित करना है, और वैराग्य। ये सभी है कि आपका प्राण कंट्रोल हो जाएगा। आपका प्राण निरोध कैसे करना है? आपको पूरक, रेचक, कुंभक का अभ्यास करना है। तो प्राण निरोध का क्या उपाय बताया योग वशिष्ठ में? पूरक, कुंभक, रेचक। और अलग से बताई है वैराग्य, परम कल्याण का ध्यान करें। व्यसन क्षय, व्यसन क्षय होता है ये, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग ये सब नहीं करना, नॉन वेज वगैरह नहीं करना। निरोध की विशेष युक्ति, हमेशा निरोध रखना है। निरोध मतलब सभी चीजों का त्याग करना है, परमार्थ का ज्ञान करना है, परमार्थ का ज्ञान लेना है, शास्त्र का और सज्जनों का संग करना है, वैराग्य और अभ्यास का प्रैक्टिस करना है। ये जो हमारा योग वशिष्ठ उसमें योग दर्शन में भी है, वैराग्य और अभ्यास। ओके, सो दिस इज इट। आई थिंक this slide you can also share clear shot. You can also send in English group also. Yes, ma'am. Already we have. हाँ, if you have, so no problem. If someone did not have, so you can send it clear, take a photo, then you can send in group also. Okay, clear? Yes, ma'am. Clear. Thank you, ma'am. Thank you. ओके लिपालिका जी, ओके सभी को प्रैक्टिस कीजिए। रसिका जी, कल्याणी जी, श्रवण जी, विजय सर, सिमी, सभी तैयारी कीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, Thank मे you, बी ma'am. फ्रॉम यस यस। मैम पीडीएफ में फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है। ओके, पीडीएफ में फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्ष रामायण टेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ व्याधि? व्हाट इज द कॉज ऑफ व्याधि? ये क्वेश्चन गलत है, ये कह रहे हैं हम, कॉज ऑफ व्याधि। आंसर गलत है, 1 2 3 होना चाहिए। ओके, Just repeating foods का slide is missing, where is that? Okay,
Yes, उस लास्ट वन, इसके आगे वाली, हम्म। हाँ बस दिस वन. By eating bad food is not included there, and we are including the sleep and night something. Yes, worrying day and night. This we added. That is in Adi, not in Vyati. So 1, 2, 3 Hmm. is right. Okay. Just listen, everyone. Um. Okay. If question direct ask, like here is asked only Vyadi. Okay. And options are mixed with um, lack of knowledge, eating, the emergence of good desires, strong desires. Okay. तो इसमें डी ऑप्शन नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा इसमें ना. Yes. तो इसमें बी ऑप्शन आएगा. ओके, आप सभी ठीक कर लेना इसको. और मैं ये बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन सभी ध्यान से सुनेंगे. अगर क्वेश्चन व्याधि आता है और ऑप्शंस में सब मिक्स आते हैं, सब इसका कॉज पूछा गया है, कॉज ऑफ व्याधि, और सभी मिक्स हैं और ऑप्शन में 1 2 3 4 आ रहा है, तो आपको 1 2 3 4 ही टिक करना है. समझ में आया? नहीं मैम. जी मैम. अगर सिर्फ व्याधि पूछा गया है, सिर्फ आदि पूछा गया है, डिफरेंस किया गया है दोनों में, क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस किया हुआ है, या तो आदि पूछा गया है या व्याधि, तो आपको स्पेसिफिक जाना है कि क्या आदि और क्या व्याधि की कोड बताए गए थे. अगर थोरोली, अगर सिर्फ आदि व्याधि को, सभी बीमारियों को एक ही लिया है उन्होंने, व्याधि व्याधि एक ही तो है स्टार्टिंग में, अगर उसको लिया गया है तो उसमें सभी कॉज आएंगे, वो चाहे आदि के हो या व्याधि के हो. आप ये समझ लीजिए, आदि और व्याधि के अलग अलग कॉजेज है, बस इतना ही ठीक है. पर अगर एक पूछा जाता है कि आदि व्याधि जो है, आदि व्याधि जो है उनका क्या क्या कॉज है, तो उसमें सभी कॉज आ जाएंगे. ठीक है? Okay, ma'am. But here according to the question, only 1, 2 will be correct. हाँ Yes. हाँ, इसमें व्याधि आया है, तो इसमें हमें No, 3 is फर्स्ट. also correct. Lipika ji, 3 is also correct. There it is written. Re-emerging of strong desires. देखो, अगर यहाँ पर आदि व्याधि होता तो 1 2 3 4 चार ऑप्शन करेक्ट होते. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, चलिए. तो